Today we have with us the famous yoga personality, Yogacharya Dr. Hemlata Sharma. She is a role model to women in the society. Welcome ma'am. Namaste. सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ में इंडियन योगा एसोसिएशन को बहुत हाईली अप्रिशिएट करती हूं मैं, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि इंडिया के अंदर जितनी भी योगाचारिणीज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है वो है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, योगा से महिला सशक्तिकरण। तो किस तरह से महिलाएं योग से सशक्त हो सकती हैं, और इसी को लेते हुए इंडियन योगा एसोसिएशन ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करती हूँ उनके इस एफर्ट्स को। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन योगा एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी योगा फॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को लेके आता है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस तरह से किस तरह से हम ट्रेडिशनल योग को प्रमोट कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनली ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन योगा एसोसिएशन, जहाँ पे बहुत सारे रिनाउंड योग गुरु बैठ के एक साथ कार्य कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। और किस तरह से हमारा इंडिया का जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं जिसमें बसी हैं, जो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी देता है हमारा ट्रेडिशनल योग, उसको कैसे प्रमोट किया जाए पूरे विश्व भर के अंदर, उसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और हम चाहेंगे कि इंडियन योगा एसोसिएशन से सभी जुड़ें। We all know that you have accomplished a lot in yoga ma'am. How did you become a yoga master? सी आराधना, जहाँ तक है कि योग ने मुझे क्या दिया है और हमने योग की अपनी शिक्षा और दीक्षा कहाँ से ली है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि योग से पहले हमने एमसी किया है। आई एम A-level फ्रॉम डॉइक, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। आफ्टर दैट माय गुरु एंड माय हस्बैंड लाइक योगी उमेश शर्मा, so he was running Yogasli Yoga Society. He is the founder of Yogasli. So he has started Yogasli in 2007, and at that time I was serving as a IT HOD in a very renowned school. So when I got opportunity in winter break to join yoga, then from there I have started my journey. In that 10 days of period, many things like I myself come to know about me, that yoga is really working at a physical level, mental level, emotional level. And at that time when you are HOD, head of the department, somewhere I was in under pressure, in depression, anxiety, and lots of responsibility were there, because my kids were also very young at that time, and domestic work plus your job responsibility, I was very, I was not able to cope up all the responsibilities. Then I joined your class, and really I really felt that this is a very good field, and somehow we can say, as Maharshi Patanjali is saying, that your sanskara get triggered. आपके संस्कार शक्ति आपकी बाहर आती है, वो संस्कार आपको फील्ड में लेके आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो संस्कार उसी समय उनको ट्रिगर होना था और मुझे योग के फील्ड में आना था। एंड नो डाउट इन दैट माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट, and in that 10 days of period, Pandit Radheshyam Mishra ji, under his guidance I did my advanced yoga course from UYLS Ujjain. So he also motivated me a lot that Hema, you are doing so good, you come in this career, in this field, you come in this field. So like in that way I have started my journey. Then I did my teachers training under the guidance of Yogi Umesh Sharma ji, and then advanced course I did from Ujjain Yoga Lab Society, and in that way I have started my journey. Then in 2000 I have started my practicing in 2010. Then in 2011 I did my course, both the courses. And at the same time, like I was giving time to myself. ऐसा होता है ना, जब आप कुछ करना चाहते हो तो एक जुनून होता है आपको। मुझे ऐसा था कि योग को मैं सीखने के लिए अपनी ही बॉडी को एक रिसर्च सेंटर मान लूं। How yoga is working, how asana is working, pranayama is working, meditation is working, at what level?
Then I start reading all the books, like what is Bhagavad Gita is saying, Hat Pradipika is saying, Gharan Samhita is saying, Patanjali Yoga Sutra is saying, and why they are saying this. How yoga can become your lifeline, the art of living, how you can learn from yoga. So in that somewhere I was, making me ready to become a very good yoga instructor. In Jaipur, I was at the time when I was in, I remain in meditation. So I was always requesting and praying that make me the renowned yoga instructor of the Jaipur. But with the blessings of God, I'm very thankful that I'm doing so good in this field, and this is the way I have started my journey. And then day by day, I organized many workshops, and particular workshops like workshop for kids, workshop for women, greater age. So at all age group, okay, I have worked, and really the feedback and they were coming so good that helped me to boost up my self-confidence. And in that way, I have started my journey, and I am really enjoying this. What a wonderful journey. Thank you for sharing. I can't wait to uncover more through this interview. Thank you. So, ma'am, you mentioned that you've done a master's in computers, a master's in English, and then you did a teaching job, and then you did so many years of working with children, and then you came into yoga. So, with all of these experiences, आपका ये क्या experience रहा है कि आपको योग ने सिखाया है जो आपको और आगे बढ़ाता जाए? देखिए आराधना, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है संभावनाओं को संभव आकार देना। आपकी खुद की पोटेंशियल को आप पहचानते हैं योग के माध्यम से। आप खुद पहचानते हैं, अपने आप को पहचानना सीख जाते हैं। इट्स ए सेल्फ जर्नी, ओके, विथ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये ऐसी जर्नी है जो आप जितना सीखोगे, इन डेप्थ आप जाओगे, आप अपने आप के करीब आते जाओगे, अपने आप को समझते जाओगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कितनी सारी चीजें आप खुद हैंडल कर सकते हो, उसको आप सीख जाओगे। एक टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। जब योग करोगे तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारा भोजन जो भी हम ले वो अच्छे से पचे, नींद की क्वालिटी हमारी अच्छी हो, स्वभाव हमारा बैलेंस्ड रहे, स्टेबल रहे, शांति रहे। जो भी परिस्थितियां, जो भी कंडीशन, सिचुएशंस हमारी लाइफ की आ रही है, उनको हम समझें और उसको स्टेप आउट करें, कैसे स्टेप्स लेना है। तो वो सारी हम इसीलिए कहते हैं कि योग कार्य करता है चेतना का विकास करने के लिए। यू डेवलप योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अवेकनिंग what you are doing, how it can be, how it should be, okay? So you become so positive, जो फिर आप छोटी छोटी बातों में, नेगेटिव चीजों के अंदर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना आप छोड़ देते हैं। एज भगवद गीता सेज दैट एक्शन विद परफेक्शन, योग है कर्मेषु कौशल, और परफेक्शन विद एक्शन। तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल अडॉप्ट योगिक लाइफस्टाइल, यू विल डू प्रैक्टिस। इट्स नॉट, डोंट लिमिट विद द asanas only. You do practice of asana, you do practice of complete Ashtanga yoga. As Maharshi Patanjali is saying that yama, niyama, and then asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi. So you do start doing practice, then automatically you will become introvert. You will get that technique to become cut from this outer world, that is Maya Jal. Okay? So when you will become introvert, then you will come to know about your inner self. Your soul power will get increased. You will get that enthusiasm, that spirit, that power, that we can say in Hindi, that हौसला, जुनून आपके अंदर वो आ जाएगा, एक आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। तो योग से वो पावर आता है, और वो पावर आपके हर एक फील्ड में काम करता है। It's not like you do yoga to become a yoga professional. No, you do yoga to balance your life. You do yoga to learn how to live your life. You do yoga to bring happiness in your life. You do yoga to settle your life. Like up downs are coming in everybody's life. Okay, so yoga give you that power, that strength, that confidence level. Okay, you remain always static, firm, balanced. Okay, जैसे एक रूट होती है, तो रूट का काम क्या, जितनी रूट आपकी स्ट्रांग होगी तो आंधी तूफान कितना भी आ जाए उस पेड़ को आप हिला नहीं सकते, ट्री को आप हिला नहीं सकते। तो वो होता है कि योग अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता है। एंड देन डे बाय डे यू शाइन मोर। ओके, डे बाय डे यू वर्क मोर, बिकॉज योग आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एट ऑल एरियाज योग इज वर्किंग। एज इन योग वी से दैट योग इज वर्किंग एट ऑल कोशास।
or at all the layers, like physical layer, then your that we say annamay kosha, then pranamay kosha, then manomay kosha, then vigyanmay kosha. Automatically your consciousness, your awareness, that wisdom coming to you, and then whatever you do in your life, okay, you will do good things. So that will bring happiness, anandamay kosha. And when you are in blissful state of mind, then always your soul power will get increased. Your sitting soul in your body will feel so blessed. So this is really yoga is working at each and every step of our life. Okay, so nice. Thank you for sharing. तो मैम, जैसे आपने बताया आपकी योग जर्नी कितनी ब्यूटीफुल और सुंदर रही है, आप हमें अब बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एंटर योगस्थली योगा सोसाइटी. See, as I have changed my complete life, my way of thinking, and I felt that it was a complete transformation, okay, at all the levels. So I thought that if I can build that healing capacity, healing power, stamina, energy, enthusiasm, spirit to live your life, happiness, so I should spread that happiness in our society. I should spread that happiness among kids, among women, among greater race. So that was my motto, and definitely my interest of teaching yoga, that comes from the feedback of my students. When they were sharing with Gurudev Umesh Sharma ji, they were always appreciating me. The way of teaching yoga is they were liking me. They were looking forward to attend my classes. So it was really very helpful for me to build up my confidence level in teaching yoga. Okay, so that really makes me to join Yogasthali Yoga Society. Then I resigned 5 times. I have given my resignation from IT HOD post, and then I entered in 2011 completely in yoga field, like 24/7 hours. Oh, okay. So this was the, and at the same time, Umesh Sharma ji was running Yogasthali Yoga Society, but he also, at that time, he also needs a good teacher, instructor, so that we can spread yoga more in our society. So when a lady is teaching, when a woman is teaching to women, that really inspired a lot. So that really brings lots of women client at Yogasthali, and I am a meditative person. That sanskara came from Gayatri Shaktipeeth, and I did my graduation from there. So Gayatri Shaktipeeth, तो उसमें ऐसा है कि हमें योग को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और हमारे खुद के फादर और मदर वो गायत्री शक्तिपीठ, हमने उनसे सीखा है, तो वो दे आर वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ पंडित, दे आर वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ गायत्री शक्तिपीठ. तो हमारे घर के अंदर वो स्पिरिचुअल बातें होना और वो रात को सोना, तो हम लोग, मैं गांव से हूँ पुष्कर से, तो हम चंद्रमा की चांदनी में सोते थे, तो वही पापा हमें नक्षत्र दिखाते थे, चंद्रमा के बारे में बताते थे, सारे प्लैनेट्स के बारे में बताते थे, और नेचर एनर्जी क्या होती है, कैसे हील करती, तो बचपन से हमने उसको जिया है. और यज्ञ करना, हवन करना, ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट रह चुका है. तो हमें सब कुछ, तो जल्दी से योग को कनेक्ट होने में हमें समय नहीं लगा, तो उसको हम समझ पाए और एज ए प्रोफेशन हम उसको ले पाए, क्योंकि दैट लाइक मेरा सारा इंटरेस्ट ही, मुझे योग के अलावा कुछ नहीं दिखता था कि चारों, मतलब मैं जब चाहे मुझे योग करवा लो, जब चाहे मुझे योग दूसरों को सिखा दूं मैं, तो ऐसा मेरे अंदर वो जुनून आ गया था कि मुझे लगा कि बहुत, चाहे वो शुद्धिकरण क्रियाएं करवानी हो सभी को, चाहे आसन करवाना हो, चाहे मेडिटेशन करवाना हो, चाहे प्राणायाम करवा के उसका इफेक्ट बताना हो, चाहे लाफिंग योग करवाना हो, लाइक ऑल. सो दैट रियली हेल्प्स मी टू जॉइन Yogasthali Yoga Society, and then I decided that I should join Yogasthali Yoga Society, and I am serving there as a leading yoga master. Oh, beautiful. One question I have for people who don't know, what is Gayatri Shaktipeeth Society? Gayatri, all know that Shanti Kunj Haridwar is a very renowned and very famous place for Adhyatmik Urja, spiritual power. Okay, so वो जो है बनाया गया है पूरा, बहुत ही, इसको हम कहते हैं अखंड ज्योति जलाई गई है, जो हमारे गुरुदेव हैं हम सभी के, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रखा गया है.
और उन्होंने हमारी जो आध्यात्मिक जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें बताया है। यज्ञ थेरेपी क्या होती है वो हमें बताया है। और वास्तव में अपनी जो चीजें हैं, मतलब कि वो इतना बड़ा, कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। शांति कुंज जाना ही अपने आप में एक बहुत ब्लेस्ड फील करते हो आप वहाँ जाने, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हैं। तो दैट रियली मेक्स मी एंड मोटिवेटेड मी अ लॉट टू सर्व दिस सोसाइटी विद द राइट थिंकिंग एंड पर्पस। सो नाइस। मैम, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप सुबह 5:30 क्लासेस शुरू कर देते हैं और आपके इवनिंग में भी क्लासेस रहते हैं, रात में भी मेडिटेशन रहता है, ऊपर से आपके 2 बच्चे भी हैं एंड आप घर का भी सारे काम करते हैं, तो आप में वो एनर्जी कैसे आती है जिसके लिए आप अपना सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल पाएं और अपनी लर्निंग के लिए टाइम निकाल पाएं? देखिए आराधना, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे विश्वास नहीं करते। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पीरियड होता है अर्ली मॉर्निंग का, जब आपके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जाएं बहुत सारी बरसात करती है। तो हमारी आदत है कि हम 4 बजे उठ जाते हैं। एज वी आर चार्जिंग आवर मोबाइल 100%, आई एम चार्जिंग माई सेल्फ 100% टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी थ्रू आउट द डे अमंग माई स्टूडेंट्स। तो वो रहता है घर के कार्य, ये सब कुछ करना, तो अपने आप पे सेल्फ वर्क करना बहुत जरूरी है। तो 4 बजे उठ के हमारे जो नित्य कर्म हैं वो हम करते हैं। फिर देन आई एम गिविंग हाफ एन आवर फॉर माई सेल्फ। आई एम डूइंग मंत्र चैंटिंग, आई एम डूइंग हवन पूजा, ईश्वर को याद करना, प्योर उस ब्लेसिंग्स को फील करना। And you then know that I am a Reiki master also, so I can connect that vibrations. So that really makes me more powerful, more energetic. और मैंने ऐसा फील किया है कि इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं में बहुत ताकत है। आजकल हो क्या रहा है, हम बहुत ब्लास्ट हैं कि हमें भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, सब लोग बहुत केयर करते हैं और अवेयरनेस भी है अच्छा भोजन करने की। लाइफस्टाइल सबकी इतनी अच्छी है, सुंदर है, सारी सुख सुविधाएं होने के पश्चात भी दे आर नॉट हैविंग दैट एनर्जी लेवल। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन द कॉस्मिक पावर, वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन द यूनिवर्सल पावर, वी आर नॉट सिटिंग। और ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, आपने किसी में भी आप उठा के देख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त को हमेशा बहुत ही प्योर माना गया। और हम भी इस चीज को मानते हैं कि उस समय यदि आप बैठ जाते हैं, जैसे एक घरण संहिता के अंदर हमारी शरीर को घट कहा गया है, घड़ा कहा गया है, तो वैसे ही आप खुले घड़े के समान बैठ जाएं और वो आध्यात्मिक ऊर्जाएं सारी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, दिन भर के लिए आपको एनर्जी को सर्कुलेट कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड यू आर फीलिंग विद दैट एनर्जी। ओके, तो फिर आप उस एनर्जी को लेके, उस एंथुजियाज्म को लेके, और आपको हर पल लगे कि कोई आपके साथ है, दैट एनर्जी, दैट ऑरा वो आपके साथ है, इनसाइड भी और अराउंड भी। तो फिर आप अपने आप को, आप कभी उस एनर्जी को डल होता हुआ देख ही नहीं सकते। वो एनर्जी आपको पोषित करती है, वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही आपको एनर्जी देती है एट ऑल द लेवल्स। आप चाहे फिजिकल वर्क कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो वो तो इतना अथाह सागर है कि आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करो उस एनर्जी को, बढ़ती है, कम नहीं होती है। उस एनर्जी का टाइप ही यही है। तो आई बिलीव इन दैट, एंड इन दैट वे आई चार्ज माई सेल्फ। अभी क्या हो रहा है, सुबह उठते से लोग आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। ओके, बीइंग ए योग पर्सनैलिटी, मुझे अपने आप को चार्ज करना पसंद है। सुबह उठते से मैं अपने आप को चार्ज करती हूँ। सुबह उठते से कभी हमने शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो संस्कार ऐसे हैं कि जब हम धरती माँ पे पैर भी रखते हैं तो पहले माँ को प्रणाम करते हैं। ओके, तो स्पर्श करने से पहले भी हम माँ को प्रणाम करके स्पर्श करते हैं। हम उठते से हमारी आदत है कि इस तरह से करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो ये सारे संस्कार सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप करवा देता है। तो हाँ, थोड़ा समय लगता है हैबिट में डालने में, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट हो जाती है। तो ये हैबिट आपको पोषित करती है, एनर्जी देती है। तो आई ट्रस्ट इन दैट। तो हमारे व्यूअर्स को ये एडवाइस है कि सुबह उठ के मेडिटेशन करें और अपने आप को ऊर्जा से भर ले। तो हम सब ने देखा है कि आपकी क्लासेस हमेशा भरी रहती हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस भी हमेशा फुल रहते हैं, आपका ऑनलाइन टीआरपी भी इतना हाई रेटिंग है। तो ये क्या चीज है जो आपकी क्लासेस को अलग बनाती है दूसरे योगा इंस्ट्रक्टर्स से? देखिए, इसमें आराधना हम यही कहना चाहेंगे कि हम दिखावे में नहीं जीते, हम जैसे हैं वैसे ही आना पसंद करते हैं। हम जब भी लाइव आए हैं, फेसबुक पे लाइव आए हैं, अदर मीडिया पे लाइव आए हैं, हम यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, हम जैसे हैं वैसे ही आ जाते हैं।
हमें मेकअप और मतलब ये होता है ना पूरा तैयारी करें, उसकी नीड नहीं होती, स्क्रिप्ट तैयार करने की नीड नहीं होती है। क्योंकि जिसने योग को जिया है, जिसने वास्तव में उस शक्ति को अपने जीवन में उतारा है, योग की पावर को, तो उन्होंने, यदि योग अनुभव की चीज है, किताबों में लिखी हुई चीज है, योग किताबें पढ़ने से हम पंडित नहीं बन सकते, योग अच्छे योगा प्रोफेशनल नहीं बन सकते जब तक कि हम उस चीज को अपने जीवन में उतार के ना देखें। तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आपके जीवन में इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए, फिर भी आपने बिल्कुल स्मूथली राई की जैसे निकाल दिए। और जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि राई आई होती है जीवन के अंदर और वो पहाड़ समझ के अपनी पूरी दुनिया ही बिगाड़ लेते हैं, तब हमें लगता है कि रियली आई एम वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट रियली गिव मी बूस्टिंग डोज। तो हमें लगता है कि जीवन की कुछ अच्छी बातें योग के माध्यम से हम सिखा दें और ये बता दें कि योग क्यों करना है। तो ये हमारे बहुत बड़ा, हमारा क्या कहेंगे कि एक महायज्ञ चल रहा है, उसके अंदर एक छोटी सी आहुति होगी। अगर एक का भी जीवन अगर सुधर जाता है हमारी बात को सुनने से कि योग को क्यों अडॉप्ट करना है, कैसे हमने अपना जीवन परिवर्तन किया है, तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे पास कुछ नहीं होगी। तो जब भी हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो भाव वही रहते हैं कि इनके जीवन को हर तरफ से मुझे सुधारना है, जो भी उनका लेवल है उस लेवल से आगे बढ़ाना है उनके लेवल को, चाहे वो मेंटल लेवल हो, चाहे उनका थॉट प्रोसेस लेवल हो, चाहे उनका फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, उनसे उनको उभार के आगे लेके आना है। तो एक लक्ष्य जब आपके पास होता है और जब आप उन चीजों से आप अपने स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाते हो, व्यूअर से कनेक्ट हो पाते हो और वो बात बता पाते हो जिससे वो एक नया रास्ता, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नया हौसला उनके जीवन के अंदर जले और प्रकाशित हो और वो अपने जीवन को अच्छा बना ले। तो हमारा हमेशा ध्येय, हमारा लक्ष्य यही होता है कि योग के माध्यम से और योग को समझाते समझाते हम ये समझाएं कि जीवन जीने की कला क्या है और योग ही जीवन जीने की कला आपको सिखा सकता है। तो मेक योग एज ए लाइफ लाइन, लाइफ स्टाइल, पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट लाइक नीड। जब आपको जरूरत है तब आप योग में आते हो, जरूरत है तब तो आना ही है, एज ए हीलिंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। बट वैसे ही आप जब आप सिंपल अपनी और भी जॉब प्रोफाइल आप कर रहे हो, देन ऑल्सो यू अडॉप्ट योगिक लाइफस्टाइल। 24 घंटों में से यदि 1 घंटा आप योग को दे देते हो तो आपके बाकी के 23 आवर्स इतनी स्मूथली जाएंगे, आप खुद सोचेंगे कि हर एक लेवल पे, यानी आपके मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मैनेजमेंट क्वालिटी पे, सब पे इतना सुंदर असर आ जाता है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ जाता है। आप कैसे लाइफ में आप जी रहे हो, ठीक है, तो अपने आप ही वो अपब्रिंगिंग आपके अंदर आ जाती है। तो यही है कि एक योग जो है एक संजीवनी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको यदि हर कोई अपना ले तो जीवन को अच्छा बना सकता है। और जब फैमिली एक भी, हम हमेशा कहते हैं बीइंग अ लेडी, मेरे को हमेशा लगता है कि पूरा समाज की धुरी है एक औरत, एक महिला, पूरे घर की धुरी है, तो घर आसपास से उसके इर्द गिर्द घूमता है। यदि एक महिला यदि ढंग से योग को कर ले, सीख ले, जान ले, पहचान ले, तो पूरे परिवार को अपना समर्थ बना सकती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को उनको सिखा सकती है, लाइफ जीना उनको सिखा सकती है। ऐसे से करते करते पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, यानी पूरा वर्ल्ड जिसको कहेंगे विश्व अच्छा हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगी जब सब घरों के अंदर, सब फैमिलीज के अंदर सब प्रसन्न है, सब हैप्पीनेस से भरे में है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, चेतना का विकास हो चुका है, तो जीवन में वो कभी खराब कार्य करेंगे नहीं, बैड स्टेप्स उठाएंगे नहीं उठाएंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे, रिग्रेट उनको नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसी चीजों से है कि योग वो चीज आपको देता है जीवन के अंदर और वही हमें डिफरेंट बनाता है अदर योगा इंस्ट्रक्टर से। और हम जब भी हमारे बच्चों को सिखाते हैं योग तो हम यही बताते हैं कि आप योग इसलिए मत ज्वाइन करो कि आपको दुबला होना है। Many are coming with this, तो वो जब बोलते हैं हमें कि मैम पावर योगा होता है कि आपके यहाँ पे, तो हम मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप पावर लेके आइए, हम आपको पावर योगा करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर डूइंग पावर योगा यू शुड हैव पावर। ओके, अब उनको पता नहीं है कि पावर योगा है क्या और कुछ है नहीं पावर योगा। सर हमारा बेस जो है वो हठ योगी है, हमारा बेस वही है, हमारा बेस राजयोग है, हमारा बेस भक्ति योग है, हमारा बेस कर्म योग है, हमारा बेस ज्ञान योग है। ये सारी ऐसी धाराएं हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा वर्क भी कर लिया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी उभर के आती है और सब तरफ सब
जगह काम करना हर एक लेयर पे बहुत जरूरी है। आप चाहोगे कि यार फिजिकल लेयर पे काम कर लो, बहुत सारे पतले दुबले लोग आते हैं हमारे पास, ऊपर से बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिखती है और अंदर से जब वो 5 मिनट बात करते हैं तो पता चलता है कि बिल्डिंग अंदर से कैसी है। उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस, वो क्या चाह रहे हैं और अंदर से कितना अपने आप को फंसी कर रखा है, समझ ही नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि योग को इसलिए अपनाएं कि अपने जीवन को स्मूथ बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं, इसलिए योग को अपनाएं। So beautifully said. As our viewers know, yoga is the art of living. So, as ma'am said, follow yoga as an art of living. मैम जैसे आपने बोला आप क्लासेस में राज योग कराते हैं, भक्ति योग कराते हैं, हठ योग कराते हैं और दूसरे प्रकार के योग कराते हैं, पर इन सब में आपका सबसे फेवरेट योग कौन सा स्टाइल है? देखिए, जहाँ तक आराधना मेरा है, अपने आप का स्वयं का इसमें विचार है, तो मैं सारे ही योग को बहुत अच्छे से निभाती हूँ। यदि जहाँ पर आ जाए कि हठ योग, तो मुझे आसनों की प्रैक्टिस करने में भी बहुत आनंद आता है। अपने आप की जो पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियल है, उसको निकालने में बड़ा आनंद आता है। और रही बात भक्ति योग की, तो भक्ति योग मुझे बड़ा पावर देता है, मेरे सोल पावर को इंक्रीज करता है। रही बात कर्म योग की, तो मुझे कर्म में निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यदि मेरे पास कोई भी आ जाता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कर्म योग करूँ। इसी के लिए मैंने जैसे अनाथालय हैं, सुमरन संस्थान है, वहाँ पे मैं रोज संडे को जब मैं फ्री होती हूँ तो वहाँ पे योग सिखाने जाती हूँ। ऐसी कई पार्क हैं, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना वर्क देती हूँ, तो मुझे वो बहुत ब्लेसिंग्स और अच्छा फील करवाता है। और योगा स्थली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे पर्सन्स आते हैं, लेडीज आती हैं जो बहुत एंजाइटी हैं, जिनको वास्तव में काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हम कभी फील नहीं करते, चाहे हमें घंटा भर उनके साथ बिताने में लग जाए, हम ये चार्ज नहीं करते उनसे। तो ये हमारा कर्म योग है। हमें अच्छा लगता है कि हम एक माध्यम बन जाते हैं उनके जीवन को अच्छा करने में। वो समझे ना समझे, पर वो हमें इनर सेटिस्फेक्शन जरूर दे देता है कि आपने एक अच्छा कर्म किया है। और हम कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो ये बात बहुत सत्य है। और साथ में मेरा स्टाइल है अष्टांग योग, ट्रेडिशनल योग, जो हम पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है। आप केवल फिजिकल बॉडी पे काम मत करो, आप प्राणायाम भी उतना ही महत्व दो, आपको प्रत्याहार को भी उतना ही महत्व दो। आप बैठो, आपको मेडिटेशन नहीं होता है, स्टार्ट टेकिंग सिटिंग। आप सिटिंग लेना शुरू तो करें। हमेशा यही कंप्लेंट रहती है कि मैडम हम तो 2 मिनट ध्यान से बैठ नहीं पाते, हमारा ध्यान ही नहीं लगता है, आंखें बंद ही नहीं होती है। तो भाई ये 2 दरवाजे हैं, बेसिक तो आपकी आंखें और आपके कान। ये जब दोनों दरवाजे आप बंद करोगे, डोर्स, तभी तो आप अंदर झांक पाओगे कि आप क्या हो। तो हमारा ये लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि हम इस माध्यम से, कि प्रत्याहार के माध्यम से हम गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, सरल से सरल उनको विधियां बताते हैं, ताकि वो इंट्रोवर्ट हो जाए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग की तरफ चले जाए और वो समझे कि क्या है आत्म साक्षात्कार जिसको कहा जाता है। अपने आप से मिलना, अपनी आत्मा से मिलना, अपने सोल से मिलना, उस चीज को देखना वहां पे। अब हमने आंखें बंद करी और हम अपने आप के अंदर देखने का तरीका है, हम चाहे तो अंधेरा देख सकते हैं, हम चाहे तो उजाला देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस कर देता है कि जब आप उजाला देखते हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आपके अंदर आता है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जैसा फील करते हो, सोचते हो, देखते हो, विचारते हो, आपके सारे बॉडी सेल्स वहीं से सीखते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट इन द सेम वे। So when you are in yogic personality, you know that how yoga is working, how to sit, how to focus at your inner self, then automatically your body cells will get more energetic. Okay, so आप इसमें इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। So ये सारे स्टाइल से हठ योग हो, that I like most, अष्टांग योग हो मुझे बहुत पसंद है, भक्ति योग हो मुझे बहुत पसंद है, और हाँ, अष्टांग योग फ्रॉम मैसूर स्टाइल, जो मैसूर का स्टाइल है, जो गुरुदेव के पतंजलि जॉइस का है, तो ये हमारे जो गुरुदेव हैं उमेश शर्मा जी, उन्होंने वहीं से सीखा हुआ है, मैसूर से ही। तो वो अष्टांग योग करने में भी हमें बहुत आनंद आता है। आपका दृष्टि, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर है ना, तो आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपका ब्रेथ, इन तीनों का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आप कोऑर्डिनेशन करके जब आप आसन करते हो, तो चाहे आप 1 घंटा करवा लो, 2 घंटे करवा लो, यू आर जस्ट एंजॉयिंग द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। सो दैट रियली वर्क्स अ लॉट टू डिटॉक्स योर बॉडी, that allow to unlock your energy centers, okay, that then energy get spread
and some way you have energy in your body, but your energy is not getting the right path. So when you will do the practice of bandhas, when you do the practice of kriyas, that your energy, locking energy inside your body get spread, that come out, and that makes you more fit, healthy, energetic and enthusiastic in your life. So my style, I like Hatha Yoga style, and basically Raj Yoga, traditional yoga style, and yes, Bhakti Yoga. I love to sing, I love to chant mantras, and हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये कहते हुए बड़ा अच्छा फील करूँगी कि हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आते हैं उनको भी भक्ति रस में बहना हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मैम, वी हैव सीन ऑन यूट्यूब एंड योर सोशल मीडिया कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल करे हैं ऑफ पीपल हैविंग एंजाइटी, ऑफ प्रेगनेंसी इश्यूज। तो व्हाट इज वन सक्सेस स्टोरी यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स व्हिच कम्स टू योर माइंड? At present, all right. Recently, a woman is there. Her name is Shruti, and she is from Ganganagar. So she was having a number of problems. That lifestyle disorders. She was having diabetes, high blood pressure. She was suffering from, anxiety issues, night fogging. And she was completely disturbed with her lifestyle, depression, anxiety issues, with that panic attacks, and मतलब इतने सारे उसके साथ में issues से उसका uterus remove हो चुका था, that was also, and her heart was enlarged, ये उसका आया था, और उसका जो heart beat जो करना है वो उसको क्या कहेंगे, palpitation, तो उसका पैल्पिटेशन बहुत हाई था, पर ब्लड प्रेशर बहुत लो था बॉडी का। ओके, उसको ये था कि पूरा हैंड उसका वर्क करना बंद कर दिया था। इवन शी वाज नॉट एबल टू मेक चपाती आल्सो। ओके, तो उसने सब चीज के लिए बाई लगा रखी थी, और उसको अपने परिवार को खाना खिलाए हुए, शायद भोजन कराए हुए उसको एक साल हो गया होगा। ओके, तो ये सारी चीजें उसके आई मेरे पास में, और उसका पूरा स्किन मतलब उसका बहुत इरिटेशन, यदि वो किसी भी सन में भी निकल जाए, सनलाइट के अंदर, या फिर गैस अपना जो गैस के पास भी वो चला जाए, तो वो रेशेस हो जाते थे उसके स्किन में, एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो शी हैज रिटर्न में, उन्होंने मैसेज किया मुझे कि योर सर्वगुण संपन्न स्टूडेंट, उसको 14 प्रॉब्लम्स, 14 उनको प्रॉब्लम्स थी। So it was really a very challenge for me too, that how I will get cure that. But yes, yoga works a lot to bring happiness in her life. मतलब इतना था कि वो पूरे विंटर सीजन के अंदर वो हॉस्पिटलाइज्ड ही रहती थी। इतना था उसको कि उसको, उसके परिवार वालों को और उसको खुद को भी ये डर था कि मैं कभी भी जा सकती हूँ, समझ गया, कभी भी जा सकती हूँ, I will be no more with this kind of body. Okay? तो वो जब केस मेरे पास में आया तो मुझे लगा कि हाँ, but again I am having full trust on yoga power. I am having full trust on traditional yoga form. जो पतंजलि योग सूत्र करता है, हम हर एक लेवल पे काम करें, हर एक लेयर पे काम करें, फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, प्राण जो ऐसे अपना होता है, तो उस सब पे काम करेंगे तो डेफिनेटली दैट हीलिंग कैपेसिटी विल गेट इंक्रीज। ओके, तो मैंने उसी सोच से उसके साथ में आसन करवाए, उसकी काउंसलिंग करी, उसको प्राणायाम करवाया, उसको मेडिटेशन करवाया, उसको मंत्रा चैंटिंग करवाई, और विद इन लाइक 4-5 मंथ्स धीरे धीरे जहां वो डायबिटीज के लिए 3 टैबलेट्स लिया करती थी, उसकी 2 पे आ गई, 2 से 1 पे आ गई, और अभी बहुत हैप्पी हूं मैं, उसने पूरा बंद कर दिया। स्टिल शी इज डूइंग प्रैक्टिस अंडर माय गाइडेंस। ऐसे ही एक केस अभी आया था बैंगलोर से, तो उसमें ये था कि मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उठ ही नहीं पाई उसके बाद में, तो उसको हम कहते हैं मायोसाइटिस, उसको हो गया था कि पूरा यहाँ से हिप से लेके पूरा थाई तक का मसल्स पूरा उसका काम करना बंद कर दिया था। एक जगह यदि वो बैठ जाए तो उसको 3 लोग चाहिए उठाने के लिए, और वो ग्राउंड पे बैठे हुए उसको 9 मंथ्स हो गए थे। तो अगेन आई हैव फुल ट्रस्ट, सो मैंने उसको मॉडिफाइड योगासन्स करवाए। उसको एंजाइटी उसको रहती थी बहुत ज्यादा कि डेफिनेटली अगर बच्चा जिसका इतना छोटा है वो उसको कैरी नहीं कर पा रहा है, तो डिप्रेशन में आना स्वाभाविक है। हम भी उसकी जगह हो तो आ जाए कि ऐसी कौन सी लाइफ हो गई है, एक लिमिटेशन हो जाती है बॉडी की। फिर चलो 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, फिर लॉन्ग लाइफ उसी तरह से आपको जीना तो बड़ा
डिफिकल्ट हो जाता है, कहने में बड़ा आसान होता है बट जो जीता है उसी को पता चलता है। तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से करवाया प्रैक्टिस, और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। विद इन 15 to 20 डेज वो अपने आप खड़ा होना सीख गई, इवन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर वो अपने आप खड़ा हो गई वो। तो ऐसी कितनी ही स्टोरीज हैं जिसको हम कहें तो योग ने एक हीलिंग पावर उनको दिया है, एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में। बीइंग अ योग थेरेपिस्ट, I really worked on anxiety. I'm working on diabetes. I'm working on thyroid patients. I'm working on frozen shoulder. ये सारी चीजें आप योग के माध्यम से क्योर कर सकते हो, ओके। बट अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो आपका जो ऐसा नहीं करें कि आप जो आपको एलोपैथी मेडिसिन है वो आप बिल्कुल स्टॉप कर दे और योग में आ जाए, ऐसा नहीं। आप वो स्टार्ट रखें, बट एट द सेम टाइम यू स्टार्ट ऑल्सो योगा प्रैक्टिस, ओके। सो योग विल बिकम योर अल्टरनेटिव थेरेपी। तो वो वहां पे एज ए हीलिंग कैपेसिटी आपकी काम करेगी, चाहे फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। तो हमने ऐसा करके भी देखा है कि ऐसा जिनको योग करवाया गया और जिनको नहीं करवाया गया तो इसमें बड़ा डिफरेंस आ गया। कैंसर पेशेंट पे हमने देखा है, और आई डिड माई रिसर्च ऑल्सो इन दैट सब्जेक्ट। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज द वे आई एम हीलिंग, आई एम ट्रांसफरिंग द योगा शक्ति इन ऑल माई स्टूडेंट्स। How inspiring, ma'am. Thank you for sharing. So, ma'am, what does International Yoga Day mean to you? And this year, how do you give it importance? इंटरनेशनल योगा डे, सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि सबने इसको स्वीकारा है तो सबने सामूहिक रूप से योग की शक्ति को पहचाना है। हम सभी, हर एक नेशन मिलकर योग के पावर को पहचानते हुए योग को अपने लाइफस्टाइल के अंदर लाने के लिए एक सेलिब्रेशन के रूप में हम कर रहे हैं, ताकि जो योग नहीं कर रहे हैं वो इसके प्रति अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए और योगिक लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट कर ले। फर्स्ट थिंग ये। अब 2024 दिस ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योग इंटरनेशनल योगा डे। सो द थीम इज योग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो योग कैसे एक लेडी की लाइफ में, एक वुमेन की लाइफ में वर्क कर सकता है। सो वी नो दैट फॉर ईच सोसाइटी फैमिली इज द सेंटर, and in the family women are playing very important role while functioning of the family, and about is how that family will work, the aura, the environment of the family, it completely depends. Nowadays all females, all women are working women, so how they will balance work life balance? They are working, job responsibility and domestic work. So it's both the level they need to give their 100%. यदि वो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी करती, जॉब अच्छे से करती और फैमिली बिगड़ जाती है, वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसका मतलब ही क्या हो? अगर आप अर्निंग कर रहे हो, फैमिली आपकी कहीं जा रही है, बच्चे आपके कहीं जा रहे हैं, वो संस्कार नहीं आ पा रहे, तो कोई अर्थ नहीं है। तो उसको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए उसको अपनी ही बॉडी पे काम करना पड़ेगा, अपने मन पे काम, अपने थॉट प्रोसेस पे काम, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, सो दैट शी कैन come with more energy, she can come with more stamina, management quality। और जब ऐसी लेडी कोई जो योगिक पर्सनैलिटी है, जो चारों ओर से बहुत हेल्दी है, तो she can become a very good, she can do a very good role to enhance our society। अपने सोसाइटी की अपब्रिंगिंग में वो बड़ा अच्छा काम कर सकती है। एक बहुत अच्छे एजुकेशन फील्ड के अंदर आप ले लो, लीडरशिप के अंदर आप ले लो, मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर आप ले लीजिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर आप ले लीजिए, पॉलिसीज बनाने में आप ले लीजिए, एज ए पॉलिटिशियन आप ले लीजिए, ओके। तो इतने सारे फील्ड के अंदर अगर सभी काम करने लग जाए लेडीज आके, और एकदम हेल्दी लेडीज जब काम कर रही हैं, तो 100% दे विल गिव देयर बेस्ट। टू गिव 100% टू द फैमिली एंड सोसाइटी, दे नीड टू वर्क ऑन देयर बॉडी। सो अभी लेडीज को जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेज आ रही है, जैसे जो ग्रोइंग गर्ल्स हैं उनको बड़ा पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, पीसीओएस का प्रॉब्लम आ रहा है, उनका नींद क्वालिटी अच्छी नहीं है, एंग्जाइटी हो रहा है, छोटी छोटी गर्ल्स को डिप्रेशन में जा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड समवेयर पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनका भी एक सपोर्ट चाहिए होता है गर्ल को। तो जब वो योग करेंगे तो इन सारी चीजों से बैलेंस क्रिएट होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा अपने आप के प्रति, आपको लाइफ के अंदर क्या करना है। इसका मतलब आप, मतलब आजकल क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर भी है और बच्चे का खुद का एक अपने आप के लिए भी प्रेशर है।
जब सारे बच्चे अच्छे से और भी गर्ल्स कर रही होती है और आप उसमें अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर, तो फिर आप सोचते हो कि जैसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिस कोटा में होते हैं, आए दिन आप क्विट कर जाते हैं लाइफ को। तो दिस इज नॉट द वे। आप लाइफ को क्विट कर रहे हैं छोटे से उसमें आके कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस के अंदर। क्या एमबीबीएस बना इंजीनियरिंग करना ही लाइफ है? ये नहीं होना चाहिए। यू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, ये आपका होना चाहिए। देन स्किल डेवलप करिए, किसी भी लेवल पे आप जाके स्किल डेवलप करिए। और स्किल कब डेवलप कर पाएंगे? जब आप खुद बहुत एनर्जेटिक होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, और दैट विल कम फ्रॉम योग शक्ति। आपको वहां पे योग कार्य करेगा। योग का मतलब है तो जोड़ना। आपके और बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन टूट रहा है अभी, वो कनेक्शन आपका बैठ जाएगा। देन ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ इन पॉजिटिव वे। ओके, सो दिस इज द वे आई विल give my contribution to the society. मैम हमने ऑलरेडी देख लिया कि आप क्या इतने अच्छे रोल मॉडल हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर जर्नी इन इंटरनेशनल योगा डे एज वेल। Thank you so much. मैम, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद योर फॉलोअर्स एंड योर स्टूडेंट्स ऑन योगा डे? Message I want to give that make yoga as a lifestyle. जैसे भोजन करना जरूरी है, योग करना जरूरी है। साथ में ये मैसेज देना भी जरूरी है कि आप आधुनिकता की तरफ मत भागिए। आप समझिए आपकी लिमिटेशन क्या है, बॉडी की लिमिटेशन क्या है, और वो चीज जीवन में अपनाइए जो आपको वास्तव में अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाए एट ऑल द लेवल्स अगेन। सो ये होना चाहिए। और जब आप योग को अपनाते हैं तो आप कांस्टेंट, रेगुलर, डेडिकेटेड प्रैक्टिस करें विद ग्रेटिट्यूड। हो सकता है आपकी बॉडी में चेंजेस आने में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, बट आप धैर्य रखिए, क्विट मत करिए, छोड़िए मत कि योग से कोई इफेक्ट नहीं आता। आ रहा होगा इफेक्ट, वो इतना बॉडी खराब था, वो इतना माइंड खराब था कि समय लग सकता है उसको इम्प्रूव होने में, बट आप टाइम तो दीजिए, समय तो दीजिए। व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स? अभी हमको चाहिए कि सारे काम बहुत फटाफट हो जाए। गर्ल्स आती है, पूछती है मैम 1 महीने में कितना वेट कम हो जाएगा? हम कहते हैं सॉरी, आई कैन मोटिवेट यू। ओके, आप मोटी हो, आप पतली होने के लिए मत आओ, मेरे से मोटिवेशन लेने के लिए आ जाओ, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ क्वालिटी। आप इसलिए आ जाओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मोटा पतला होने से कोई मतलब नहीं होता है। आप कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ये तो सारा पतला होना, दुबला होना, बॉडी अच्छा दिखना, सुंदरता आना, ये तो आपके साथ आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? दैट योग इज ब्रिंगिंग द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जब अंदर से आप हैप्पी होते हो तो फिर बाहर आर्टिफिशियलिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही बड़े खिल के बाहर आते हैं। तो दिस माय मैसेज टू ऑल दैट ऑन दिस इंटरनेशनल योगा डे, सभी विमेन को, हमारी लाइफ आपको पता है कि सारी समाज की, परिवार की धुरी है। हम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ताकि परिवार को भी 100% दे पाएं, समाज को भी दे पाएं और अपने लिए भी एक रास्ता बना पाएं। Ma'am, what would you like to say about Indian Yoga Association? See, Indian Yoga Association is a platform where all traditions of yoga are coming together for the single purpose: joining of body and mind, joining of body, mind and soul. So evidence-based research they are doing. It's a very Indian Yoga Association जहाँ पे सभी जितने भी renowned yoga personalities हैं, गुरुज हैं, गुरुदेव रवि रविशंकर जी हैं, वहाँ पे अपने माँ हंसा हैं शांतपुर से, वहाँ पे अपने DSVV से बैठे हैं डॉक्टर चिन्मय भैया वहाँ पे हैं। तो ये सारे जितने भी रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने योग को जिया है, चाहे आप सबसे पहला रिसर्च सेंटर हमारा लोनावला के अंदर खुला है तो वहाँ से डॉक्टर सुबोध तिवारी जी हैं वहाँ पे। ओके, इसी तरह से बहुत सारे इतने ऐसे पर्सनैलिटीज बैठी हैं वहाँ पे जो बनाती हैं कि वास्तव में योगा ट्रेडिशंस को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो वो बैठ के पॉलिसीज बनाती हैं और वो बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप लगाना, पब्लिक वर्कशॉप्स लगाना, सबको बताना, और एक एक पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने सारे चैप्टर्स बना रखे हैं। हाउ दे चैप्टर्स है, राजस्थान का तो राजस्थान चैप्टर है, तो उसको हाउ दे आर लाइक स्प्रेडिंग द एसेंस, द ट्रू एसेंस एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग योग, वो कैसे आप स्प्रेड कर रहे हो। अगेन आई एम सेइंग दैट दे आर मच फोकसिंग ऑन पतंजलि योग सूत्रास, वही है जो आपके लाइफ परिवर्तन करके रखते हैं। और साथ में बहुत सारी रिसर्च हो रही है अभी
तो वो रिसर्च में बहुत काम करती है। डॉक्टर आनंद बाल योगी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो इतनी सारी रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं एविडेंस बेस्ड। तो वो रिसर्च से हमारा वास्तव में कितना फायदा होगा, दैट पीपल विल कम टू नो, देन अगेन द ट्रस्ट विल कम ऑन योग शक्ति, ट्रेडिशनल योगा फॉर्म। आजकल ये हो जा रहा है कि हम होता है ना फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा भाग रहे हैं और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्राणायाम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अवेकनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कैसे एनर्जाइज करना है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग को, यज्ञ को। तो ये सारा ये बता रहे हैं सबके सब बैठ के किस तरह ये काम कर सकता है। और ये सेल्फ एक्रेडिटेशन बॉडी है, यानी ये इनके खुद के भी इंडियन योगा एसोसिएशन है, वो खुद भी अपने कोर्सेज ऑर्गेनाइज करती है। बेसिक कोर्स है, फंडामेंटल कोर्स है, आपके एडवांस कोर्स हैं और आपके और भी एडवांस टू एडवांस लेवल कोर्स हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज वो करवाती हैं और ये एक्रेडिटेशन देती है और भी योगा स्कूल्स को जो करवा सकती हैं। योगा सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करवाती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और केवल इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही, इंटरनेशनली इट इज वर्किंग। इन अब्रॉड ऑल्सो दे आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ व्हाट इज ट्रेडिशनल योग एंड व्हाई यू शुड अडॉप्ट दैट योगिक स्टाइल। अब ये ट्रेडिशनल फॉर्म क्यों अडॉप्ट करो, व्हाई पतंजलि सूत्र ओनली, ये क्यों अडॉप्ट करना है, व्हाई हठ योगा ओनली। तो ये स्प्रेडिंग करने का काम कर रही हैं और साथ में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, जितनी भी चीजें हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि इंडियन योगा एसोसिएशन ऐसा एक उभर के एक सोसाइटी आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो अपने ट्रेडिशनल फॉर्म को स्प्रेड करने के लिए रात दिन एक करके कार्य कर रही है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम मेंबर हैं। ये हमें कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और हमारा योगा योगा सोसाइटी जो है उनका एसोसिएट सेंटर, हमारा योगा योगा सोसाइटी भी उनका एसोसिएट सेंटर है। हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनके वर्कशॉप्स। सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म और मैं चाहूँगी कि सभी इससे जुड़े और ताकि योग कैसे वर्क करता है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरह से योग पे जो बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है वो किस प्लेटफॉर्म पे हुई है, क्या अपनाया है कि उन्होंने योग की लाइफ को पूरा योग से दूसरों की लाइफ में परिवर्तन कर दिया है। तो हमें जरूर इंडियन योगा एसोसिएशन से जुड़ना चाहिए। तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी फॉलो करी डॉक्टर हेमलता शर्मा जी की एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर्ड ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स। तो द मैसेज दैट वी ऑल हैव फॉर यू इज कि इस इंटरनेशनल योगा डे adopt yoga in your life because it works on all the levels and make your life beautiful. Namaste.